Hi, good morning. In today's class, we are going to study about Raoult's law and its application. Now, what's the Raoult's law? So, Raoult's law said that the partial vapor pressure of volatile component in an ideal solution is proportional to its mole fraction and equals to the product of its mole fraction and its pure component vapor pressure. Now we'll study about the application of Raoult's law for the solution of non-volatile solute in a volatile solvent. Suppose you are taking sugar solution. In a sugar solution, sugar that is sucrose is a non-volatile solute. हमें पता है कि शुगर के इतने वेपर्स बनते नहीं है, तो शुगर को क्या कहेंगे हम? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. एंड वाटर इज आवर वोलेटाइल सॉल्वेंट. दैट मीन्स इट विल फॉर्म वेपर्स. नाउ let consider one vessel which contain pure water in it at particular temperature. Suppose temperature is 298 Kelvin. Then what's the vapor pressure of pure water at 298 Kelvin? That's equal to P naught. So P naught is a vapor pressure of pure water. So we'll write this as a P naught. Suppose we are adding sugar in this, then we'll get sugar solution. So in this water, we are adding sugar. Now sugar is a non-volatile, correct? So it not able to form any vapors in a sugar solution. So here we have vapor pressure. Let's call it as a P. So P is a vapor pressure of solution of non-volatile solute. This is P. So obviously this P is smaller than P naught. P is smaller than P naught. Why? Because percentage of water molecules will decrease in a sugar solution. In a pure water there is 100% water, right? In a sugar solution, percentage of number of moles of water decreases. That is, mole fraction of water decreases. Hence vapor pressure also decreases. Now what's the mole fraction of solute here? Suppose we are considering it as a X2. X2 is a mole fraction of solute. Then what will be mole fraction of solvent? It will be 1 minus X2. Now this 1 minus X2, we'll consider it as X1. That's the mole fraction of solvent. We know that mole fraction of solvent plus mole fraction of solute is equal to 1, because total sum of mole fraction is always equal to 1. Now, according to Raoult's law, P, that is vapor pressure of solution, is directly proportional to volatile component. Now, here P is directly proportional to mole fraction of water, because water only able to form water vapors, which is responsible for producing this pressure P. Hence, we can say P is directly proportional to mole fraction of volatile component, that is X1. So we'll get this equation according to Raoult's law. So here we studied about the statement of Raoult's law that partial vapor pressure of volatile component in an ideal solution is proportional to its mole fraction. So here vapor pressure P is directly proportional to mole fraction of volatile component, that is water. So we'll get P is directly proportional to X1. Suppose we want to convert this proportion sign to equal sign, then we have to take constant, and that constant is P naught. So P is equal to P naught into X1. So we'll get this equation. P is equal to P naught into X1. So for solving numericals, we can use this equation. That is P is what? P is a vapor pressure of solution is equal to P naught, that is vapor pressure of pure water, into mole fraction of water. Now we know that X1 is equal to 1 minus X2. So put this equation, that is X1 is equal to 1 minus X2, this value, in equation P is equal to P naught into X1. So what we'll get here? We'll get P is equal to P naught 1 minus X2. So we'll get P is equal to P naught minus P naught X2. Therefore, P naught X2 is equal to P naught minus P.
Hence, we'll get x2 is equal to P naught minus P upon P naught. Now lowering in a vapor pressure is P naught minus P. So initial vapor pressure of solvent is P naught. After adding non-volatile solute, that is sugar, vapor pressure becomes P naught minus P. So lowering in a vapor pressure is equal to P naught minus P. Relative lowering in a vapor pressure is P naught minus P divided by P naught. Now what's the equation to calculate molar mass of solute? Okay, so we'll get here lowering in a vapor pressure P naught minus P. Lowering in a vapor pressure is P naught minus P is equal to P naught x2, and relative lowering in a vapor pressure, that is P naught minus P divided by P naught, this is called as the relative lowering in a vapor pressure, that's equal to x2. x2 is a mole fraction of solute, and this relative lowering in a vapor pressure is a colligative property, so we can write that here. P naught minus P is a relative lowering in a vapor pressure. Relative lowering in a vapor pressure, P naught minus P upon P naught. This is colligative property. Now what's the meaning of colligative property? Colligative property is a property which depends on number of solute particles and not on its nature. तो colligative property ऐसा property होता है जो किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, पर कि सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है. लाइक शुगर है या यूरिया है, अगर हम 1 मोल शुगर लेंगे और 1 मोल यूरिया लेंगे तो दोनों का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा, राइट. सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P naught minus P divided by P naught is equal to x2, that is mole fraction of solute, and this you have to remember, this relative lowering in a vapor pressure is a colligative property. Now equation to calculate molar mass of solute, we know that this equation P naught minus P upon P naught, that's the relative lowering in a vapor pressure, is equal to x2. Now what's the equation for x2? x2 is number of moles of solute. x2 is a mole fraction of solute. So how to calculate x2? It is N2 divided by total number of moles. Total number of moles is N1 plus N2, which is equal to P naught minus P upon P naught. Generally, N1 is very, very large compared to N2. Therefore, we can write this equation N2 divided by N1 is equal to P naught minus P divided by P naught. Now what's the value of N2? N2 is number of moles of solute. So it is W2 molar mass of, W2, that is mass of solute divided by molar mass of solute M2. And what's the value of N1? N1 is number of moles of solvent, that's the W1 mass of solvent divided by molar mass of solvent M1. So this is equal to relative lowering in a vapor pressure, that is P naught minus P divided by P naught. Now we want equation for M2, so we'll write M2 is equal to mass of solute into molar mass of solvent divided by P naught minus P divided by P naught, that's the colligative property, into W1. So by using this equation we can calculate molar mass of solute. Now you have to remember here molar mass of solute is inversely proportional to colligative property, that is M2 and this P naught minus P upon P naught, that is relative lowering in a vapor pressure, are inversely proportional to each other. ओके, तो एक बार वापस देख लेंगे कि हमने कैसे इसे डिराइव किया है. वी आर अप्लाइंग दिस राउल्ट्स लॉ for the solution of non-volatile solute in a volatile solvent. So here our non-volatile solute is sucrose, that is sugar, and volatile solvent is water. So if P naught is a vapor pressure of pure water, तो solution का vapor pressure जो है वो water के vapor pressure से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसमें हम sugar डाल रहे हैं, तो sugar का vapor pressure कम है, that we consider as a P.
Now, how to calculate P? For calculating P, we are using Raoult's law. Raoult's law states that जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोल फ्रैक्शन of volatile component. So here volatile component is water. So we can say P, that is vapor pressure of solution, is directly proportional to mole fraction of solvent x1. So we'll get equation P is equal to P naught into x1. Now sum of mole fraction is always equal to 1. That is x1 plus x2 is equal to 1. Therefore x1 is equal to 1 minus x2. अभी इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रखा P इज इक्वल टू पी नॉट x1 की जगह पे रखा हमने 1 माइनस x2. तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2. अभी ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो सोल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता और वो डिपेंड होता है सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर. सो it is a colligative property. P, that is relative lowering in a vapor pressure is colligative property. तो हमें इक्वेशन मिला था P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2. अभी x2 का अगर वैल्यू हम रख देंगे इस इक्वेशन में तो हमें मोलार मास के लिए इक्वेशन मिल जाएगा. नाउ विल ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस. So on y-axis we'll take vapor pressure. And on x-axis we'll take mole fraction. तो यहाँ पे हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो स्टार्टिंग में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना था, सपोज इज 1. और अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 रहेगा देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी 0. और यहाँ पे x1 का वैल्यू हम 0 लेंगे और यहाँ पे x2 का वैल्यू 1 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम बढ़ा रहे हैं. सो यहाँ पे इन अ सेंटर अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा. तो इन अ सेंटर x1 का वैल्यू 0.5 है तो x2 का वैल्यू भी 0.5 ही रहेगा. तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा. अगर प्योर वाटर रहेगा देन x1 इज इक्वल टू 1. एट दैट टाइम व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट हम यहाँ पे लेंगे सपोज. और अगर x1 0 हो जाएगा और x2 इज इक्वल टू 1 मतलब प्योर शुगर रहेगा तो वेपर प्रेशर कितना रहेगा? तो वेपर प्रेशर 0 रहेगा. तो हमें ग्राफ मिलना चाहिए, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए. तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर ले लेंगे. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम कम होते जाएगा जैसे ही शुगर का अमाउंट बढ़ेगा और फाइनली वो 0 हो जाएगा. सो विल गेट ग्राफ लाइक दिस. अभी यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वेपर प्रेशर अगर हमें निकालना है दैट इज़ P, तो हमें इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू x1. तो फाइनली जब x1 0 हो जाता है, फाइनल जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है x1 इज इक्वल टू 0, वहाँ पे P भी 0 हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा वेपर प्रेशर. ऑन दिस एक्सिस वी हैव वेपर प्रेशर एंड ऑन x एक्सिस वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. 1 से लेके 0 तक हम गए, या x2 का मोल फ्रैक्शन 0 से लेके 1 तक जा रहा है. तो हमें किस तरीके से ग्राफ मिलेगा ये हमने यहाँ पे देखा. नाउ विल अप्लाई Raoult's law for the solution of two volatile liquids. Now take a solution of two volatile liquids like benzene and toluene. तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम निकालता है.
सपोज एक वेसल में हमने बेंजीन लिया है, सो इन दिस वेसल वी आर टेकिंग बेंजीन, तो यहाँ पे हमने बेंजीन लिया और दूसरे वेसल में हमने लिया टोलुइन, और यहाँ पे हमने लिया है टोलुइन. Now what will be the vapor pressure of benzene, pure benzene? So we consider it as a P naught B. So P naught B is a vapor pressure of pure benzene, and P naught T, T for toluene. So P naught T is a vapor pressure of pure toluene. Then we are adding this to liquid in another vessel, keeping temperature constant. तो यहाँ पे हमने दो लिक्विड को ऐड किया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजीन प्लस टोलुइन solution. So here we'll get total vapor pressure, that is P total, which is equal to vapor pressure of benzene plus partial vapor pressure of toluene. Here PB represent partial vapor pressure of benzene and PT is a partial vapor pressure of toluene. Since in this container, in a last container where we have a solution of benzene and toluene, we'll get vapors of both benzene and toluene. So we need to calculate partial vapor pressure of benzene and partial vapor pressure of toluene. Then by using Dalton's law of partial pressure, we can calculate total vapor pressure. तो फाइनल जो वेपर प्रेशर रहेगा वो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन और टोलिन दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा, एंड दैट्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये जो इक्वेशन है पी टोटल इज इक्वल टू पी बी प्लस पी टी, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर. ये डाल्टन्स लॉ का इक्वेशन है. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, पी नॉट बी, B for benzene. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन हमने कंसिडर किया है P नॉट T. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया है P टोटल. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट टोलिन. सॉरी, गलत, not P naught, we have to take partial vapor pressure. So we have to consider here P total is equal to partial vapor pressure of benzene plus partial vapor pressure of toluene. Now here, in order to calculate partial vapor pressure of benzene and partial vapor pressure of toluene, we'll use Raoult's law. So according to Raoult's law, partial vapor pressure of volatile component benzene is directly proportional to mole fraction of benzene, and partial vapor pressure of toluene is directly proportional to mole fraction of toluene. Therefore we'll get Pb is equal to P naught, that is vapor pressure of pure benzene, into mole fraction of benzene. Similarly, we'll get Pt is equal to P naught T into mole fraction of toluene. अभी हमें यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मिला है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन मिला है. देन विल ऐड दिस टू वैल्यूज इन ऑर्डर टू गेट टोटल वेपर प्रेशर. सो P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग राउल्ट्स लॉ. अभी नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन अ गैसियस फेज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स. अभी सपोज हमने इसी में हमने लिया सपोज ए एंड बी, टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स, दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है हमारे पास A.
So volatile liquid A, दिस volatile liquid A है, और यहाँ पे फिर क्या मिलेगा हमें, विल गेट P नॉट A, और यहाँ पे हमने दूसरा लिक्विड लिया दैट इज़ B, volatile liquid B, और यहाँ पे हमने लिया P नॉट B, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज P नॉट B. अगर इन दो लिक्विड्स को हम ऐड करते हैं, आफ्टर एडिंग दिस टू लिक्विड्स विल गेट सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, A प्लस B. तो यहाँ पे हमें पार्शियल वेपर प्रेशर A का भी मिलेगा और पार्शियल वेपर प्रेशर B का भी मिलेगा. इन दोनों को ऐड करते तो हमें P टोटल मिल जाएगा. सो गेट P टोटल विच इज़ एडिशन ऑफ PA प्लस PB. करेक्ट. सो यहाँ पे लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड A एंड लिक्विड B. इनको ऐड करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिला. तो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना रहेगा, PT, दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB. नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन अ गैशियस फेज. अभी ऊपर गैस है, तो इस गैस में A का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा. सपोज A का मोल फ्रैक्शन है Y और B का मोल फ्रैक्शन है YB. Inside the solution, mole fraction of A is XA and mole fraction of B is XB. But in a vapor phase में number of moles A का भी रहेगा और number of moles B का भी रहेगा in a gaseous phase. तो उसमें भी हम mole fraction निकाल सकते हैं A और B का. So let YA is a mole fraction of A in a gaseous phase and YB is a mole fraction of volatile component B in a gaseous phase. तो फिर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हाउ टू कैलकुलेट करना है वाई ए का वैल्यू. अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर चाहिए तो टोटल वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं, दैट इज PT इज इक्वल टू PA प्लस PB. ये फार्मूला यूज़ करके, दिस फार्मूला इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ. देन वी कैन यूज़ राउल्ट्स लॉ एंड वी कैन कैलकुलेट PA वैल्यू. सो PA इज इक्वल टू व्हाट, P नॉट A इंटू XA, whereas PB is equal to P naught B into XB. ओके, तो हमें टोटल वेपर प्रेशर मिला है. तो हम YA एंड YB कैसे निकाल सकते हैं. तो इसके लिए वापस हमें यूज़ करना पड़ेगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वी कैन से YA, that is mole fraction of A in a gaseous phase, is equal to total vapor pressure, that is P total. So we 1 minute. So YA हमारा है mole fraction of A in a gaseous phase. So here we can write partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A in a gaseous phase according to Dalton's law of partial pressure. Therefore, we can write PA, partial pressure of A, is equal to total pressure, P total, into mole fraction of A in a gaseous phase, that is YA. So, PA is equal to P total into Y. Therefore, YA is equal to what? Therefore, YA is equal to PA upon P total. तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ गैशियस फेज हम निकाल सकते हैं. सिमिलरली वी कैन राइट PB इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन अ गैशियस फेज. देयरफॉर YB इज इक्वल टू PB अपॉन P टोटल. तो ये इक्वेशन हमें आ जाएगा. अभी इस के लिए हम ग्राफ निकालेंगे. सो विल ड्रॉ ग्राफ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स. ओके, तो हम इसके लिए ग्राफ निकाल रहे हैं अभी. दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स. मतलब सपोज बेंजीन एंड टोलिन है, इस तरीके से. सो दे आर टू कंपोनेंट. सपोज हम यहाँ पे A और B कंसिडर करते हैं, A एंड B बोथ आर वोलेटाइल. तो इसके लिए ग्राफ किस तरीके से आएगा वो हम देखेंगे. सपोज A इज़ अ मोर वोलेटाइल देन B
ऐसा हमने एज्यूम किया कि ए ज़्यादा वोलेटाइल है और बी कम वोलेटाइल है, तो फिर ग्राफ कैसे आएगा वो हम देख लेंगे यहाँ पे। सो ऑन एक्स एक्सिस विल ड्रॉ मोल फ्रैक्शन, and on y axis, that is vertical axis, we'll write vapor pressure. And हम assume कर लेंगे यहाँ पे कि A is more volatile than B. A is more volatile liquid than लिक्विड बी। अगर ए ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा दैट इज पी नॉट ए, दैट विल बी ग्रेटर कंपेयर टू पी नॉट बी। हम यहाँ पे लिखेंगे तो इफ़ ए इज़ मोर वोलेटाइल दैन लिक्विड बी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी नॉट ए इज़ ग्रेटर कंपेयर टू पी नॉट बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए इक्वल टू 1। अगर एक्स ए 1 रहेगा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बी, तो एक्स बी का वैल्यू रहेगा 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी नॉट ए। एक्स ए इज इक्वल टू 1 मीन्स वॉट 100% ए, पूरा ए ही है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा, तो हम लिख सकते हैं पी नॉट ए। और जैसे जैसे ए का वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, मतलब एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए का कम होते जाएगा, वैसे वैसे पी नॉट ए का वैल्यू उतना ही रहेगा, पर पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल डिक्रीज एंड फाइनली इट बिकम्स 0 व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे ग्राफ निकाला अगर हमने यहाँ पे ग्राफ निकाला, वी आर कनेक्टिंग दिस P naught A and this 0, that means this is PA. So what is the equation for PA? It is equal to P naught A into XA. तो जब XA 0 हो जाएगा तो PA भी 0 हो जाएगा इसमें, राइट। अभी B कंपोनेंट जो है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में XB इज इक्वल टू 0 लिया है, तो राइट हैंड साइड में XB कितना हो जाएगा 1, बिकॉज सम ऑफ XA एंड XB इज इक्वल टू 1। अभी XB इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, प्योर B कंपोनेंट, तो वहाँ पे हमें प्योर B का वेपर प्रेशर मिलेगा, दैट इज P नॉट B। तो अगर XB 0 लेता है तो वहाँ पे PB भी 0 रहेगा, तो हमें ग्राफ इस तरीके से मिलेगा यहाँ पे। So we'll get graph like this. तो यहाँ पे PB is equal to P naught B into XB, ये इक्वेशन मिलेगा। और अगर हमने P सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है हमें, तो हमें इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। So we'll get this line। तो यहाँ पे हम P टोटल मिल सकता है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज सम ऑफ PA प्लस PB। तो ये PA और PB का सम रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने राउल्ट्स लॉ को अप्लाई किया। फर्स्ट वी अप्लाई दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब सुक्रोज सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन, जो भी सोल्यूट है जिसके वेपर्स बन नहीं सकता, उस सोल्यूट को हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोलेंगे। और उसका जो सोल्यूशन है
उसके लिए राउल्स लॉ कैसे अप्लाई करना है वो देखा हमने. देन इन अ सेकेंड केस वी स्टडीड अबाउट हाउ टू अप्लाई राउल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स. अभी हम देखेंगे दो टाइप के सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल सकता है. दैट्स दो टाइप के हमें सोल्यूशन यहाँ पे मिल सकता है, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. नाउ हाउ वी कैन से पर्टिकुलर सोल्यूशन इज अ आइडियल सोल्यूशन. तो उसका डेफिनेशन है सोल्यूशन दैट ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन. तो राउल्स लॉ अगर परफेक्टली अप्लाई हो रहा है और उसका जो इक्वेशन है उससे जो वैल्यूज़ आ रहा है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है विद अ प्रैक्टिकल analyzed value, then we can say that solution is an ideal solution. A solution that obeys Raoult's law at all concentration is called ideal solution, and solution that does not obey Raoult's law is called non-ideal solution. Then obey Raoult's law and non-ideal solution, further it can show positive deviation from Raoult's law or it can show negative deviation from Raoult's law. Enthalpy of mixing delta H after mixing is 0. That means reaction is neither exothermic nor endothermic. For exothermic reaction delta H is negative and for endothermic reaction delta H is positive. तो यहाँ पे रिएक्शन एक मतलब दो सॉल्यूशन दो सॉल्वेंट या दो लिक्विड्स को हमने मिक्स किया या सॉलिड एंड सॉल्वेंट को मिक्स किया तो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक भी नहीं रहेगा, एंडोथर्मिक भी नहीं रहेगा. सो वी कैन से डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन. फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन व्हेन वी मिक्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट then process may be exothermic, may be endothermic. For exothermic process delta H will be negative and for endothermic process delta H will be positive. Then volume change on mixing. अगर हमने 1 लीटर लिक्विड में दूसरा सॉल्वेंट बी सॉल्वेंट 1 लीटर मिक्स किया तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो 2 लीटर का बनेगा. तो वॉल्यूम रिएक्टेंट मतलब स्टार्टिंग में जो मिक्स करने वाले कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम जितना था उतना ही फाइनल वॉल्यूम हमें मिल रहा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे वॉल्यूम एक तो कम हो सकता है नहीं तो ज़्यादा हो सकता है. सो डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 रहेगा. दैट मीन्स वॉल्यूम वोंट चेंज आफ्टर मिक्सिंग. यहाँ पे अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है. वॉल्यूम सपोज 1 लीटर में 1 लीटर लिक्विड ए में 1 लीटर लिक्विड बी मिक्स कर रहा है तो यहाँ पे हमें 2 लीटर से थोड़ा कम वॉल्यूम मिल सकता है नहीं तो 2 लीटर से थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा मिल सकता है इन अ नॉन आइडियल सोल्यूशन में. सो दैट्स वन मोर डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो यहाँ पे ए के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आफ्टर मिक्सिंग the interactive forces between molecules of A and molecules of B almost remain same. तो ए बी का अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही रहेगा जो कि प्योर ए में था और प्योर बी में था. पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट हो जाएगा कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस और इंटरैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी. देन नेचर ऑफ मिक्सिंग. तो यहाँ पे सिंस आइडियल सॉल्यूशन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है तो डेल्टा एच का वैल्यू हमने पहले से देखा था 0 है. तो यहाँ पे नो हीट इज़ इवॉल्व और एब्जॉर्ब. और यहाँ पे हीट इवॉल्व नहीं तो एब्जॉर्ब हो सकता है. वेपर प्रेशर फॉलोज राउल्ट्स लॉ. तो हमने ये देखा कि आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ और यहाँ पे वेपर प्रेशर एक तो ज़्यादा हो सकता है नहीं तो कम हो सकता है. अगर हमने पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देखा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा आइडियल सॉल्यूशन से और नेगेटिव डिविएशन देखा देन इट गॉट लोअर वेपर प्रेशर कंपेयर टू दिस आइडियल सॉल्यूशन. देन डिविएशन टाइप. तो यहाँ पे कुछ भी डिविएशन नहीं मिलेगा सो गेट नो डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड यहाँ पे हमें पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव डिविएशन मिल सकता है. अब इसके एग्जांपल्स क्या है. तो बेंजीन एंड टोलिन आर एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन.
क्योंकि इंटरेक्टिव फोर्स बेंजीन और टोलिन में नियरली सेम होता है इसके लिए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेक्सेन एंड एनहेप्टेन, क्योंकि ये दोनों भी हाइड्रोकार्बन्स है और अट्रैक्टिव फोर्स इसमें लंडन फोर्सेस रहेंगे, सो दे आर नियरली सिमिलर, हेंस दे फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम इथेनॉल एंड वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं तो वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, राउल्ट्स लॉ से। अगर हम मिक्सचर लेंगे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, देन इट शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम आगे बात करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हमने देखे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोज which shows positive deviation from Raoult's law and the second one which shows negative deviation from Raoult's law। तो पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या? सपोज हमने लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिक्स किया, आफ्टर मिक्सिंग ए एंड बी हैव वेरी पुअर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ए में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था और बी में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो मिक्स करने के बाद ए और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है, ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ज़्यादा वेपर्स फॉर्म होंगे। ओके, ज़्यादा वेपर्स फॉर्म होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, सो विल गेट ग्रेटर वेपर प्रेशर दैन कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। दो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करके हमें वेपर प्रेशर मिला है, उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर रियल में हमें देखने के लिए मिलेगा आफ्टर मिक्सिंग दिस टू लिक्विड्स। तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव डिविएशन। इसका अपोजिट नेगेटिव डिविएशन में होगा, ए में जितना अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है या बी में जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है उससे कई ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स आफ्टर मिक्सिंग इंक्रीजेस, हेंस लोअर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू गैसियस फेज, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हमें दो सॉल्यूशन मिल सकता है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो positive deviation from Raoult's law and negative deviation from Raoult's law. So in a positive deviation, vapor pressure of solution is higher than predicted by Raoult's law, और negative deviation में vapor pressure of solution is lower than predicted by Raoult's law. So relation with the Raoult's law, तो यहाँ पे positive deviation लिखा है हमने, यहाँ पे negative deviation लिखा है। intermolecular attraction, तो ज़्यादा वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो intermolecular attractive forces between A and B will be very low compared to AA and BB। और यहाँ पे stronger intermolecular force रहेगा negative deviation में, तो कम वेपर्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ease of escaping molecules, तो यहाँ पे since attractive force is very low, more number of molecules escape in gaseous phase, ज़्यादा molecules liquid से gas phase में जाएंगे और वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे। और यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन में मॉलिक्यूल एस्केप लेस इजीली इनटू वेपर प्रेशर ड्यू टू हायर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अभी देखना है यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक, और नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा एच निगेटिव होता है, दैट मीन्स इट्स एक्सोथर्मिक। डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग इज ग्रेटर दैन जीरो, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा आफ्टर मिक्सिंग टू लिक्विड्स इन अ पॉजिटिव डिविएशन, वेयर एज डेल्टा वी मिक्सिंग इज निगेटिव, मतलब वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम था उससे थोड़ा कम हो जाएगा इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन। देन बॉइलिंग पॉइंट, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा फॉर्म हो रहा है इन अ पॉजिटिव डिविएशन। वेपर प्रेशर ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो वो लिक्विड जल्दी से बॉयल हो जाएगा, सो जल्दी से मतलब कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इन अ पॉजिटिव डिविएशन बॉइलिंग पॉइंट गेट्स लोअर, वेयर एज इन अ नेगेटिव डिविएशन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो एजियोट्रॉप फॉर्म, एजियोट्रॉप मीन्स व्हाट, द मिक्सचर विच बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट कंपोजिशन इज कॉल्ड एज अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे जो एजियोट्रॉप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो लोअर रहेगा, सो विल गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। जो भी दो लिक्विड्स है, सपोज लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए एंड बी में सपोज लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो जो मिक्सचर फॉर्म होगा बाय मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी, उसका बॉइलिंग पॉइंट when it forms azeotropic mixture at that time, its boiling point will be lower than boiling point of A. So we are saying it forms a minimum boiling azeotrope. इसके opposite in negative deviation, since negative deviation में boiling point बढ़ जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे it forms maximum boiling azeotrope. Now what's the meaning of azeotrope? Azeotrope is a mixture which boils at constant composition.
फिर इसके एग्जाम्पल हमने लिखे हैं यहाँ पे. सो इथेनॉल एंड वाटर फॉर्म पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये दूसरा एग्जाम्पल है पॉजिटिव डिविएशन के लिए. एंड फॉर negative deviation from Raoult's law, we have example chloroform as an acetone, and second example is hydrochloric acid and water. फिर हम इसके लिए ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ फॉर पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन. तो पहले हम ग्राफ निकालते हैं पॉजिटिव डिविएशन के लिए. तो वापस हमें y एक्सिस पे लेना है वेपर प्रेशर, एंड ऑन x एक्सिस विल राइट मोल फ्रैक्शन. तो सपोज़ हमने यहाँ पे XA लिख दिया एंड XA हमने 1 कंसिडर किया. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ XB हियर? द वैल्यू ऑफ XB इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे XA कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एंड XB यहाँ पे 1 हो जाएगा. सपोज A इज़ अ मोर वोलेटाइल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर की तरफ P नॉट A, और यहाँ पे B कम वोलेटाइल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P नॉट B. तो आइडियल केस में तो हमें इस तरीके से ग्राफ मिलेगा सेम. तो यहाँ पे हमें डॉटेड लाइन हमने बना के दिखाया कि दिस डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे हम, डायरेक्ट ऐसा ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ओके, तो ये आइडियल केस में हमें इस तरीके से ग्राफ मिलना चाहिए, राइट? दिस ग्राफ इज़ फॉर आइडियल कंडीशन. इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. एक मिनट. इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. तो ये ग्राफ, ऊपर वाला जो ग्राफ है, दैट्स फॉर अ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो रहेगा पॉजिटिव डिविएशन में, इट विल बी ग्रेटर देन आइडियल कंडीशन. तो आइडियल कंडीशन में वेपर प्रेशर ये था, तो आइडियल कंडीशन में हमें P मिलना चाहिए था, दैट इज़ PA प्लस PB. पर रियल में हमें ये वाला लाइन मिल रहा है, दैट मीन्स वेपर प्रेशर जो रियल में है वो थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू आइडियल वन. तो वेपर प्रेशर रियल में हमें ऐसा मिलेगा. आइडियल सॉल्यूशन में हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, और यहाँ पे वेपर प्रेशर
जो आइडियल्स है थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पर. So this is a graph for positive deviation from Raoult's law. So this graph is for positive deviation. नेगेटिव डिविएशन के लिए कैसे ग्राफ आएगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट्स लॉ से हमें ये वेपर प्रेशर मिला है, दैट इज पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी टोटल. सो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी टोटल. ये आइडियल कंडीशन में ये लाइन स्ट्रेट मिलना चाहिए था, पर नेगेटिव डिविएशन में जो राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर निकाल के आ रहा है उससे कम वेपर प्रेशर हमें मिल रहा है. तो हमें इस तरीके से ग्राफ मिलेगा फॉर नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. So here we completed Raoult's law. We studied about